Start recording. Now, yesterday I discussed a few programs with you of process. So you can see those programs here. Pico, suppose I name fork 1.c. Okay, so here I am writing main. The screen is visible to you? Yes, sir. So id equals to int id equals to fork printf hello. Control X, yes. So if I compile this program, there is one warning. Okay. And now we can execute it ./error out. So there 2 times hello will come. Okay, 2 times hello will be printed. And if I want to write here the child code, then what I have to do, if id is equals to 0. So whatever written in this if, that will be child code, and whatever written in the else part will be parent code. Okay. So suppose I print here the PID and PPID of child process. So I can write PID of, who will assign PID to the child process? OS. Yes, very good. PID of child is %d and its PID is %d. Okay. The functions that I can use: get PID, comma, get PPID. These function returns the PID and PPID of this child. Okay, and same line I copy here. ये फुल स्क्रीन मोड में कैसे जाएगा? So ऊपर व्यू पे जाओ. So सर कंट्रोल प्लस F कर दीजिए. कंट्रोल प्लस F. कंट्रोल F से तो नहीं हुआ बेटा. So right control आपको कैप्चर किया है. कंट्रोल F बोला ना आपने. सर राइट, 2 कंट्रोल होते हैं ना, जो राइट वाला कंट्रोल है उसको पकड़ के F दबा दीजिए. स्विच. स्टूडेंट बड़े इंटेलिजेंट होते हैं. सर थैंक यू बोल दो फिर. थैंक यू बेटा. किसको बोला थैंक यू, ये तो बता दो. So if I print here, it will print the PID and PPID of parent.
Okay. So, and I can print the child PID also, because child PID is returned to the parent, na? Child PID is returned to the parent. So PID of child is %d. So that what variable I have to use? What variable I have to use to print the PID of child? ID. Okay. Could you show the code again, sir? Yes. Could you show the code again? Show the code again. Yes. So you didn't save it? ये क्या हो रहा है? सर वो कुछ नहीं है, वो आएगा सर। आप क्रॉस दबा दो, ऊपर क्रॉस है उसके राइट में। कहाँ पे? ये वाला? नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ कि ये विजिबल पूरा हो स्क्रीन पे। फिर एक बार सर राइट कंट्रोल एंड सर सी दबाना। राइट कंट्रोल से सी। हाँ जी। ओह, थैंक यू बेटा। Okay, so this program actually prints the PID and PPID. So Control X, yes. Now we can execute, compile it. Some warning error is also there. So printf PID. Okay. Now we can run it. So you can see here the last line, PID of parent is 4095 and PPID is 2558. So if you run PS command, you will see that the PID of bash process is 2558. So bash created this error out. Bash process, bash shell at bash created this error out, na? So this is bash PID and this parent is its child 4095. Okay, and PID of child is 4096 and PID of child is 4096, that is returned to the parent. This line is corresponding to the parent. I should use new line. So you have to save in DOS format, right, sir? Yes.
So here you can see that the PID of parent is 4106. Okay, and its PPID is 2558. So this is correct. The parent PID, AeroTout PID is 4106, its parent is 2558. And PID of child is 4107, that is returned to the parent process. PID of child is 4107 and its PPID is 1798. What it is showing, its PPID, child's PPID 1798, and what it should show, what PPID of child it should show. सब PID of parent जो main है उसका PID. That is 4106 na. So what happened here actually in this program, that the parent, this line executed first. PID of parent is this and its PPID is this and PID of child is this. तो यहाँ तक तो करेक्ट प्रिंट हो गया सब कुछ, ठीक है. उसके बाद क्या हुआ बेटा, पेरेंट टर्मिनेट हो गया. Any process calls exit system call at the end. ये जो कर्ली ब्रेस है ना, इसके corresponding वो exit कॉल कर लेता है. हर प्रोसेस का लास्ट सिस्टम कॉल एग्जिट ही होता है, जिससे वो अपने सारे रिसोर्सेज लीव करता है. ठीक है, तो पेरेंट, मैं बोर्ड पे भी समझा दूंगा, मतलब व्हाइट बोर्ड पे भी, लेकिन यहाँ सुन लो एक बार. तो पेरेंट ने अपने सारे रिसोर्सेज रिलीज कर दिए और वो टर्मिनेट हो गया. ठीक है, उसके बाद चाइल्ड अपना ये लाइन प्रिंट कर रहा है, तो अपना PID तो सही प्रिंट कर रहा है, बट PPID क्या बोल रहा है अपना, कुछ और, जो कि पेरेंट का नहीं है. जो आपको दिखाई दे रहा है पेरेंट का नहीं है. तो एक्चुअली ये जो है चाइल्ड ऑर्फन बन गया. इस केस में चाइल्ड ऑर्फन बन गया, और उसको अडॉप्ट किसने किया है, ऑर्फन को, उस प्रोसेस ने जिसका PID शो हो रहा था. ठीक है, तो वो प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ. दिखाने से पहले करेक्ट आउटपुट आपको दिखा देता हूँ. Sir. Yes. So could you please draw it, sir? Like I got lost. इस कंट्रोल प्लस प्लस से ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना. No, sir. Can you like diagrammatically draw it on whiteboard? Yeah, I will show everything on the whiteboard. Just wait for a few minutes. Wait for a few minutes. I am writing here wait only. So what wait will do, it will now actually this, when wait is there, the parent will wait for the child completion. Actually what I am saying, what program I have written, main ID equals to fork, if ID equals to 0, okay, that is child is printing its PID and PPID, else parent is printing its PID and PPID. Okay, so actually we have no control over the CPU that which process it will execute first. It may execute child first, it may execute parent first. So while we are executing, actually CPU is executing parent first. Okay, so it is printing its PID, PPID and the child PID correctly. Okay, and then what happens, that this parent process terminates, because the last, you write here exit or not, exit system call, automatically it will be called in any process. When this curly brace come in C program, exit will get called. Okay, this is again a system call, like fork, it is a system call. Okay, and what it does, it terminates this process. Exit terminates this, because this process has done its work, it will terminate this process. Now this process is not there, means what is shell child is AeroTout and its child is this process. Okay, now suppose this AeroTout PID is 73, child PID is 70. So it is showing correctly here
that its PID is 73, its PPID is 70, and its child PID, because ID value is returned to this process, so we are printing that ID value. So suppose it is 69, so it is showing here 69, and then it terminates. So when it terminates, this child becomes orphan, and it will be adopted by one process, that is init process. And init is the ancestor, actually init is the first user space process that is created at the time of booting. Init, its PID is 1. Okay, so init, its PPID should be shown as 1. Means on some systems in Oracle toolbox there are 2 inits. So the second init PID, suppose it is 15, so it is showing that PPID value corresponding to this orphan. Now if you want correct output, what you have to do, you have to use the system called wait. Wait is again one more process system call: fork, exit, wait. These three are process system calls. Now what this wait does, that it suspends the execution of this process. This parent process means it completion for the child process, termination of child process. So if CPU goes to this process, parent process first, then also when it calls wait, it will block itself. It will block itself waiting for the completion of the child process. Okay. Now when child process completes, now CPU will go to the child process. It will print its PID and PPID. It will print its PID and PPID. Now it will print correctly. Means now it will print 69 and 73 only. If we write wait, it will print 69 and 73. Okay. And then when this process calls exit, we write exit or we do not write exit, it will be called. Okay, when it calls exit, then this wait will execute. Actually, by calling exit, process terminates itself, and its termination status is catched by the parent by calling wait. Parent catches the termination status of the child by calling wait. Okay. So here it calls wait and it takes the termination status of the child, and then it is printing its PID and PPID. Okay, so correct output, if you want to see, we have to write here wait, Control X, yes, compile it, execute it. Now you see here that first the PID and PPID of child is printed because child executes first. Okay, so its PID is 4122, its PPID is 4121, and parent's PID is 4121, and its PPID is shell's PID, that is 2558. Shell PID is 2558, and PID of child is 4122. Is it okay? And the orphan is adopted by which process? You can see here PS-E. PS अभी तो कमांड ही बताना है ना मेनली, तो PS कमांड बताया भी नहीं था, वो भी समझा देता हूं मैं, और PS-E भी. तो पहले PS डिस्कस कर लेते हैं. PS क्या क्या शो करते हैं? PID ऑफ प्रोसेस, terminal to which it belongs, means actually it belongs to which terminal. If I write TTY, it will show this device file name corresponding to this terminal in which I am working. So device file name of this terminal is /dev. Visible na? This is visible to you, /dev/pts/6. Yes, sir. सर थोड़ा बड़ा कर दो. कैसे करूं बेटा, ये तुम ही बताओगे ना. सर कंट्रोल शिफ्ट प्लस. कंट्रोल नहीं एंड सर, कंट्रोल और प्लस बस. राइट वाला या लेफ्ट वाला? लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट. लेफ्ट. अरे बाप रे, तुम कितने होशियार हो गए सब. सर आप ही से सीखा है. कंट्रोल शिफ्ट होगा सर. नहीं सर, लेफ्ट कंट्रोल एंड स्क्रॉल अप करो. स्क्रॉल है ना आपके माउस पे, उसको ऊपर करो. एक बार कंट्रोल शिफ्ट प्लस करके हो गया. कंट्रोल शिफ्ट प्लस. ठीक है बेटा, थैंक यू. वेलकम सर.
और बड़ा कर देते हैं। सो ये सही है। अब बड़ा हो गया ना। गजब है। सो क्या हुआ? नहीं सर, अच्छा है बस। अच्छा तो है। ये डिवाइस फाइल नेम शो करता है TTY. TTY gives you the device file name corresponding to the terminal in which you are working. Okay, so these two processes are corresponding to this terminal. This bash and PS, they are corresponding to this terminal. So their PID is showing, and how much cumulative CPU time these processes has used, that is shown as 0, and bash and PS process. Okay, so whatever processes owned by this terminal, they are shown here. Like suppose I write cat. Okay, cat, what it does, actually cat क्या करता है, whatever I will give input from 0, means from keyboard, it will write on 1. 1 is connected to monitor. So whatever I am giving input from 0 from keyboard, it is writing on 1, that is connected to terminal. Okay, so if I press what to exit from this command control D, cat, what I have to press, control D. Control D is end of file character. Control D is end of file character. You can use this command. All these commands are written in that file. जो मैंने OS फर्स्ट लैब फाइल दिया था ना, उसी के कमांड बताना स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो मैंने इसलिए दिखा दिया था, प्रोसेस का प्रोग्राम मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया था। अब मैं कमांड्स पे आ गया, अब उसी फाइल में सारे कमांड दे रखे हैं। तो stty-a से आपको पता लगता है कि टर्मिनल सेटिंग्स क्या है, डिफॉल्ट टर्मिनल सेटिंग्स क्या है, कि एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर आप देखिए क्या है, कंट्रोल D, ठीक है। इंटरप्ट सिग्नल क्या है, कंट्रोल C। क्विट सिग्नल क्या है, कंट्रोल बैकस्लैश, ठीक है। तो इन तीनों को मैं बताता हूँ। कंट्रोल Z है सस्पेंड, ये 4 बताता हूँ आपको। तो कैट को जब मैंने अगर उसका एक्चुअल टर्मिनेशन करना है, बिकॉज कैट का प्रोग्राम कैसा लिखा हुआ है, कैट का कोड जो है, दिस इज द कैट कोड, while n equals to read 0, ये आप बाद में लिखोगे, ये आप बाद में जब सिस्टम कॉल से प्रोग्रामिंग करोगे ना, तब आप लिखोगे ये कैट का प्रोग्राम। लेकिन मैं वैसे ही आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि कैट का प्रोग्राम ये है। ये 2 लाइन का प्रोग्राम आप कैट का, सिंपल कैट का प्रोग्राम मान सकते हो कि इट रीड फ्रॉम 0 एंड दिस 0 इज कनेक्टेड एक्चुअली टू द कीबोर्ड फाइल। Okay, so it reads from 0 these many characters in this buffer. Buffer you will declare in your program. This is the C code corresponding to cat. Okay, up to end of file, and write it on 1, and 1 is connected to display. So when you give end of file character, this returns from this, it comes out of this while loop, and cat process terminates. Cat process terminates itself by coming out of this while loop. While loop, when you press Control D, means this is normal termination. Control D से मैं क्या कर रहा हूँ, normal termination, because Control D is end of file character. Control D is EOF, end of file character. Okay. Now suppose I press Control Z, means I am using cat, and Control Z I press. So Control Z is, it will suspend this process, it will stop this process. Okay, so this process actually suspends its execution. So if you run this PS, now it will show you this cat process also. Okay, the PID of this process is 4131, and if you press write PS-L, it will show some more parameters corresponding to this cat. Okay, so
what you see here, that bash, ps, these two processes are there, cat process is there, its PID is 4131 and its PPID is 2558. So these three processes are on by this terminal PTS6 /dev/PTS/6 on these three processes, bash, cat and PS, and the PPID of cat and PS is bash. 2558 is bash. Okay. User ID corresponding to, because they are on by me. Okay, so the OS boxes ही यूजर है ना इस प्रोसेस का, तो UID OS boxes का आपको याद होगा 1000 ही था, GID भी 1000 था, UID भी 1000 था, पिछले बार का लैब याद हो तो these processes are owned by this user osboxes.org जिससे मैंने लॉगिन किया था, है ना. And this process bash is waiting for the completion of cat. bash जो है it is in wait, it is waiting for the completion of cat, क्योंकि cat complete नहीं हुआ ना, cat is waiting for a signal, क्योंकि cat ने अपना एग्जीक्यूशन को, मतलब ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा बैकग्राउंड में, ये बैकग्राउंड में नहीं चल रहा है, ये आप वापस इसको फोरग्राउंड में लाना चाहते हैं कैट को, तो आप FG लिखेंगे, FG लिखने से अगेन ये फोरग्राउंड में आ गया. ठीक है, ठीक है, ये बैकग्राउंड में रन नहीं हो रहा है, ये सिंपली इट इज ब्लॉक्ड एंड इट इज वेटिंग फॉर अ सिग्नल. तो हम फोरग्राउंड में ले आए, अब मैं कंट्रोल इसको टर्मिनेट करना है, तो नॉर्मल टर्मिनेशन तो कंट्रोल D से होता है और कंट्रोल C करूंगा मैं, तो ये मैंने इंटरप्ट सिग्नल से इसे टर्मिनेट किया. So what does FG do again, sir? Yes, please, your voice is not clear. So what does FG do? FG brings this process to the foreground. Which means? Means actually this process is in the background, but it is not executing, means it is in blocking state. This process is in blocking state because we suspend its execution by pressing Ctrl Z. To bring this process in foreground, what we will write FG. Now again it starts running in the foreground. Foreground, background. Like I show you some process running in the background. Like suppose I write here ls -lr. -L is for long listing and R is for recursive listing. Recursively it will list the files and directories. I explain here. Suppose I will write ls -L. I told you already long listing of files, और मैंने सारे fields भी बताए थे पिछले लैब में. R से क्या होता है, रिकर्सिव लिस्टिंग होगी, मतलब अगर मैं सपोज ये कमांड रूट पे चलाता हूँ, रूट पे ये कमांड चलाता हूँ, तो रूट के अंदर जितने डायरेक्टरीज हैं, it will traverse all the directories, then in those directories again it will traverse all the directories, मतलब complete file system को traverse करेगा ये. ठीक है, और इसका आउटपुट क्योंकि मैं स्क्रीन पे नहीं लाता, तो अगर मैं रीडायरेक्ट, ये होता है रीडायरेक्शन के लिए, मतलब इसका आउटपुट मैं रीडायरेक्ट कर रहा हूँ फाइल F1 में, तो एक फाइल क्रिएट हो जाएगी, उसमें इसका आउटपुट जाएगा, और ये आउटपुट रीडायरेक्शन के लिए है, और ये एरर रीडायरेक्शन के लिए हम यूज करते हैं 2 greater than एरर रीडायरेक्शन. दिस इज आउटपुट रीडायरेक्शन and this is for error redirection. मतलब मॉनिटर पे नहीं चाहते हम किसी फाइल में भेजना चाहते हैं ना आउटपुट को, then we can use this symbol. इसके corresponding आप प्रोग्रामिंग भी करोगे. For this symbol you will write a program. For this 2 greater than you will write a program. After a few labs, 2-3 labs, you will write programs for this. Okay, so error को मैं redirect कर देता हूँ F2 में. ठीक है, और ये मैं रन करता हूं, तो इट विल टेक टाइम. अब मैं Ctrl Z प्रेस कर दूंगा बीच में, कुछ भी एक्चुअली स्क्रीन पे कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन
डॉलर प्रॉम्प्ट नहीं आएगा बिकॉज डॉलर वेट्स फॉर द कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोसेस एंड इट विल टेक सम टाइम, दिस प्रोसेस विल टेक सम टाइम. तो इफ आई प्रेस कंट्रोल जेड इन बिटवीन, कंट्रोल जेड बार बार प्रेस करके देखते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, ls-lr root greater than f1 2 greater than f2. Okay, so dollar prompt will not come. Now I press Ctrl Z, suppose, so PS, what it is showing, these three processes. Now you see here cumulative CPU time this process has used, 2 time units is used, 2 time units of CPU this process has used now. Okay, now if I again run PS, the same thing it will show because it is not running. ये प्रोसेस रन नहीं हो रहा है क्योंकि कंट्रोल जेड करने से प्रोसेस बैकग्राउंड में रन नहीं होता है. इट इज एक्चुअली, आप FG लिखोगे तभी अगेन स्टार्ट हो जाएगा रन होना फोरग्राउंड में. ठीक है, अब FG मैंने लिखा, देखो अब थोड़ी देर रन हो रहा है ये फोरग्राउंड में. अब मैं कंट्रोल जेड करता हूँ वापस, तो PS करूंगा, देन यू कैन सी हियर द टाइम हैज इंक्रीज्ड. पहले 02 था, अब 04 हो गया जब मैंने FG करके इसको वापस फोरग्राउंड में रन किया. और अगर आप चाहते हो ये बैकग्राउंड में रन करना इसे, तो आप BG लिखोगे, BG लिखने से बैकग्राउंड में रन होगा, मतलब डॉलर प्रॉम्प्ट आ जाएगा. डॉलर प्रॉम्प्ट आ गया ना, ये अब बैकग्राउंड में रन हो रहा है. अब PS करते रहो जल्दी जल्दी. सो फोरग्राउंड बैकग्राउंड का एग्जैक्टली मतलब क्या हुआ? ये दिख तो रहा है, मैं शेल पे काम कर पा रहा हूँ. PS से देखो ना चेंज, वो बैकग्राउंड में रन हो रहा है, तभी तो क्यूमुलेटिव CPU टाइम बढ़ता जा रहा है. ये प्रोसेस रन हो रहा है बैकग्राउंड में. F1 में अपना आउटपुट लिख रहा है और F2 में एरर. एरर इसलिए अच्छा, ना क्योंकि कहीं जा नहीं पा रहा हूँ मैं. osboxes.org काफी सारी डायरेक्टरीज में नहीं जा पा रहा होगा. आप देखिए इसका क्यूमुलेटिव CPU टाइम इंक्रीज होता गया ना. बैकग्राउंड में रन 6 7 8 9 10 11 सेकेंड इसने CPU के यूज किए और देन इट टर्मिनेट्स. तब वो बैकग्राउंड में टर्मिनेट हो गया क्योंकि उसका काम हो गया. आप कैट F2 करोगे तो इसमें सारा एरर आ रहा है. जहां जहां मैं नहीं जा पाया ना, जहां जहां जिन जिन डायरेक्टरीज में नहीं जा पाया, जिन जिन डायरेक्टरीज में, क्योंकि डायरेक्टरी की एक्स परमिशन मुझे जरूरी है ना उसमें स्विच करने के लिए, याद होगा डायरेक्टरी की एक्स परमिशन जरूरी होती है अगर मैं उसमें. तो ये इनका ऑनर रूट होगा और ग्रुप भी रूट होगा और अदर्स को एक्स परमिशन नहीं होगी. मैं तो osboxes.org हूँ, तो परमिशन डिनाइड. इन डायरेक्टरीज में मैं ls कर ही नहीं पाया. ठीक है, ये सब किस में चला गया, एरर पूरा F2 में रीडायरेक्ट हो गया. एरर काफी ज्यादा है तो मैं Q प्रेस कर देता हूँ मोर एडिटर से बाहर जाने के लिए. ठीक है, मोर पेजर से बाहर आने के लिए. और F1 में क्या आ जाएगा, इसका टोटल आउटपुट. ठीक है, इसको मुझे अब इस प्रोसेस को इस प्रोसेस को टर्मिनेट करना है, तब मैं क्या यूज करूंगा, कंट्रोल C. कंट्रोल C से मैं प्रोसेस टर्मिनेट करता हूं. ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उस फाइल में OS फर्स्ट लैब में देखोगे ना तो आपको मिलेगा. So, like, what is the practical difference in Control D and Control C? Both of them terminate the program, right? Excellent question. I am answering. I show you the question first. Folder OS 2021. First I open that file.
here ps command is there, this redirection pipe बताता हूँ अभी रुक के, ठीक है। रिडायरेक्शन, फिर ये तो बता दिया था पाथ वेरिएबल वगैरह, ये भी बता दिया था आपको। ये मल्टीपल ऑप्शंस कैसे यूज करते हैं, -l, -a, -t तीनों ऑप्शन यूज करने हैं तो कैसे करते हैं। जैसे -lr यूज किया ना मैंने साथ में, वो सब है। यू नेम बता दूंगा, tty बता चुका। फिर ये देखो, ट्राई द फॉलोइंग कीबोर्ड कमांड्स एंड राइट डाउन द एक्शंस दे परफॉर्म बाय गिविंग अप्रोप्रिएट एग्जांपल्स। कंट्रोल C, कंट्रोल बैकस्लैश, कंट्रोल D, कंट्रोल S, कंट्रोल Q। सो ये तो चलो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोनों, ठीक है। और ये भी कंट्रोल S भी। दिस कंट्रोल C, बैकस्लैश D एंड Z इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। सो कंट्रोल D इज एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर। कंट्रोल D जो STTY -a से भी हमने देखा था ना, तो उससे क्या देखा था, कंट्रोल D इज एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर। ओके, जैसे कि आप कैट यूज कर रहे हो, तो कैट का प्रोग्राम क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना कैट का प्रोग्राम, तो इसको एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर चाहिए। अगर आप कंट्रोल C कर दोगे इसमें, तो ये टर्मिनेट हो जाएगा, कैट का प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, लेकिन ये आपने फोर्सफुल टर्मिनेशन किया है। कंट्रोल C इज इंटरप्ट सिग्नल, यू हैव टर्मिनेटेड इट बाय सेंडिंग इंटरप्ट सिग्नल। जैसे अभी मैं कैट F1 कर रहा था, कैट F1 में मैं कंट्रोल D प्रेस करके कुछ नहीं होगा, कंट्रोल D प्रेस करके वहां कुछ नहीं होगा, वहां कंट्रोल C प्रेस करना पड़ेगा या कंट्रोल बैकस्लैश प्रेस करना पड़ेगा। कंट्रोल बैकस्लैश इज क्विक सिग्नल। These two signals we are sending to terminate a process. To terminate a foreground process, we can use these two signals. तो वहां हमें जो कैट वाला कर रहा था जब मैं काम, तब मुझे कंट्रोल D प्रेस करना जरूरी है। कंट्रोल D प्रेस नहीं करूंगा ना मैं, तो मैं एक तरह से फोर्सफुल टर्मिनेशन कर रहा हूँ, मुझे अंतर कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन फोर्सफुल टर्मिनेशन कर रहा हूँ। लेकिन इसमें अगर कंट्रोल C या कंट्रोल बैकस्लैश प्रेस कर रहा हूँ, कंट्रोल D आई शुड प्रेस देयर, और कंट्रोल Z जो है इट इज स्टॉप सिग्नल। तो ये सिग्नल्स हैं, ये तीनों सिग्नल्स हैं, कंट्रोल C, कंट्रोल बैकस्लैश और कंट्रोल Z सिग्नल्स हैं, और ये एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर है। ये बिल्कुल डिफरेंट है इन तीनों से, ठीक है। इन दोनों सिग्नल्स का काम क्या है, टू टर्मिनेट द फोरग्राउंड प्रोसेस, जो कि जैसे मैंने जब कैट F1 किया, तो मोर पेजर में ओपन करता तो मैं क्यू करके बाहर आ जाता, लेकिन मैंने मोर पेजर में ओपन नहीं किया था, तो वो स्क्रॉल होता जा रहा था। अब मैं नहीं देखना चाहता वो सारा आउटपुट, मैं टर्मिनेट करना चाहता हूँ, तो आई हैव टू प्रेस कंट्रोल C और कंट्रोल बैकस्लैश। अगर कंट्रोल Z प्रेस करूंगा तो डॉलर प्रॉम्प्ट तो मिल जाएगा, लेकिन वो प्रोसेस वहीं रहेगा, प्रोसेस रहेगा। जैसे अभी प्रोसेस नहीं है ना कैट F1, अगर कैट F1 करके मैं कंट्रोल Z प्रेस करता हूं तो मुझे प्रोसेस मिलेगा कैट, ठीक है। वो स्टॉप्ड है, वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा बैकग्राउंड में, बैकग्राउंड या फोरग्राउंड, किस फोरग्राउंड में तो हो ही नहीं रहा, दिख ही नहीं रहा आपको। तो फोरग्राउंड में अगेन मैं उसको लाना चाहता हूँ, फोरग्राउंड में अगेन आउटपुट देखना चाहता हूँ। देखो ये फोरग्राउंड में रन हो रहा है ना अगेन, अब मैं कंट्रोल Z प्रेस करूंगा तो मुझे मिलेगा। और अगर फोरग्राउंड में लाके मैं ये नया प्रोसेस बन गया, अब इसमें वापस मैंने कंट्रोल Z कर दिया तो 2 कैट हो गए। अब उसको फोरग्राउंड में लाना है, ये फोरग्राउंड में देखो कौन सा आया, नेक्स्ट कैट आया। अगर मुझे पहले वाला फोरग्राउंड में लाना है तो मैं कैसे लाऊंगा, FG%1, FG%1 से जो पहले वाला ब्लॉक था वो फोरग्राउंड में आया है। अब मैं क्या प्रेस करूंगा, कंट्रोल D, तो कुछ नहीं होगा, कंट्रोल D प्रेस कर रहा हूं मैं, कुछ नहीं होगा, कंट्रोल C से ही ये टर्मिनेट होगा। अब PS करके देखूंगा, नेक्स्ट कैट ही है, इसको फोरग्राउंड में लाया, कंट्रोल बैकस्लैश या कंट्रोल C कुछ भी कर सकते हैं, कंट्रोल बैकस्लैश से भी ये टर्मिनेट हो गया। अब देखो लिखा आ रहा है ना, क्विट सिग्नल से टर्मिनेट हुआ है, ये इंटरप्ट सिग्नल से टर्मिनेट हुआ है, ये क्विट सिग्नल से टर्मिनेट हुआ है।
ठीक है, दोनों सिग्नल्स की लिस्टिंग देखने के लिए ये कमांड है kill-l। ये kill-l बताता है कि कौन कौन से सिग्नल है लिनक्स में। जैसे 2 इज SIGINT जो कंट्रोल सी से हम भेजते हैं, 3 इज SIGQUIT, ठीक है। आपका कौन सा बता रहा था मैं, एक SIGSTOP कहाँ पे है, 19 इज SIGSTOP, ओके। जो कंट्रोल जेड, मतलब दिस इज कंट्रोल जेड, दिस इज कंट्रोल बैकस्लैश एंड दिस इज कंट्रोल सी, ओके। This is control C, this is control backslash and this is control Z। अब बाकी सिग्नल भी सारे बताए जाएंगे आपको, जैसे अभी प्रोसेस के चैप्टर में कुछ सिग्नल्स बताऊंगा मैं, और जैसे अभी बता देता हूँ थोड़े। जब आप एग्जिट प्रेस करते हो, जब आप यहाँ एग्जिट लिखते हो ना, देन तब क्या होता है बेटा, हैंगअप सिग्नल जाता है। सारे फोरग्राउंड और बैकग्राउंड प्रोसेसेस को हैंगअप सिग्नल जाता है और सब टर्मिनेट हो जाते हैं। When I write here exit, hang up signal and this terminal will also terminate, okay। ये SIGIL अगर आप कोई इलीगल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते हो, जैसे divide by 0, then the kernel send SIGIL signal to your process and your process will get terminated। एक 6agv होगा, 6agv सेगमेंट वायलेशन। कई बार सेगमेंटेशन फॉल्ट आता है ना आपके प्रोग्राम में, जैसे सपोज आपने A20 एक अरे डिक्लेयर किया और आप A21 कुछ यूज कर रहे हो, A20 आपने इंटीजर अरे डिक्लेयर किया और अपने प्रोग्राम में कहीं A21 लोकेशन को एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हो, तो क्या होगा, कर्नल आपके प्रोसेस को सेगमेंट वायलेशन सिग्नल भेजेगा एंड योर प्रोसेस विल गेट टर्मिनेटेड। When you shut down your system, then this system signal will go to all the processes and all the processes will get terminated, okay। तो ज़्यादातर signals कर्नल भेजता है यूजर प्रोसेस को when some event occurs। सिग्नल का डेफिनेशन क्या है, it notifies the occurrence of an event to a process। ये प्रोसेस के चैप्टर में दे रखी है डेफिनेशन सिग्नल का। It notifies the occurrence of an event to a process, ठीक है। and generally it is sent from kernel process to user space process और user to user space process, ठीक है। तो यूजर से यूजर के एग्जांपल तो आपने देखे ना, कंट्रोल सी। अगर सपोज हम फोरग्राउंड प्रोसेस को टर्मिनेट करना चाहते हैं, वी कैन यूज दिस क्विट सिग्नल एंड इंटरप्ट सिग्नल, ठीक है। अगर आप स्टॉप करना चाहते हैं किसी प्रोसेस फोरग्राउंड प्रोसेस को, देन यू कैन यूज कंट्रोल जेड। तो ये यूजर से यूजर प्रोसेस भेज रहे हो, जब एग्जिट कर रहे हो तब यूजर से यूजर प्रोसेस आप सिग्नल भेज रहे हो, क्योंकि टर्मिनल तो यूजर प्रोसेस है ना, तो यूजर टू यूजर प्रोसेस। कर्नल टू यूजर प्रोसेस के एग्जांपल्स मैंने बताए ना अभी। आपने कुछ सेगमेंट वायलेशन किया प्रोग्राम में, तो कर्नल आपके प्रोसेस को सिग्नल भेजेगा और वो प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट एक्शन मोस्ट ऑफ द सिग्नल्स का टू टर्मिनेट प्रोसेस ही है। सिगिल जब आप इलीगल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते हो, सिग पाइप जब आप किसी पाइप में लिख रहे हो जिसका कोई रीडर नहीं है, जब पाइप के प्रोग्राम बनाओगे ना तब आपको ये सिग्नल, अभी आप ls पाइप wc करके इसका कोडिंग करोगे बाद में, 1-2 लैब्स के बाद में इनका कोडिंग करोगे आप, रीडायरेक्शन का, पाइप का, ठीक है ना। तो आप किसी पाइप में लिख रहे हो जिसका कोई रीडर नहीं है, तो सिग पाइप सिग्नल आपके प्रोसेस को जाएगा, आपका प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट एक्शन ज्यादातर सिग्नल्स का टू टर्मिनेट द प्रोसेस ही है। दो सिग्नल्स के अलावा एक तो आपको पता ही है किसका नहीं है बाय डिफॉल्ट एक्शन टू टर्मिनेट द प्रोसेस। एक सिग्नल मैं बता चुका हूं जिसका बाय डिफॉल्ट एक्शन टू टर्मिनेट द प्रोसेस नहीं है, कौन बताएगा?
कौन सा? हैंग वाला। नहीं, हैंगअप तो टर्मिनेट ही है ना, एग्जिट सिग अप। अरे किसका बाय डिफॉल्ट एक्शन अभी हम इतनी देर से देख रहे हैं, टर्मिनेट द प्रोसेस नहीं है, जो टर्मिनेट नहीं करता प्रोसेस को, इतनी देर से तो देख रहे हैं। ये नहीं देख रहे इतनी देर से। सिग स्टॉप, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड टर्मिनेट नहीं कर रहा था ना, कंट्रोल जेड सिंपली उसे सस्पेंड कर रहा है। अगर आप बीजी लिख देते हो तो वो प्रोसेस बैकग्राउंड में रन होना स्टार्ट हो जाता है, एफजी लिख देते हो तो फोरग्राउंड में रन होना स्टार्ट हो जाता है। और दूसरा सिग्नल है जो टर्मिनेट नहीं करता बाय डिफॉल्ट, वो है सिक चाइल्ड। सिक चाइल्ड अगेन नोटिफाइज द ऑकरेंस ऑफ, ये इवेंट ऑकर हो रहा है तब ये सिग्नल कर्नल भेज रहा है। आपने शटडाउन किया, सिस्टम भेजा, इवेंट ऑकर हुआ ना, आपके प्रोसेस ने एक पाइप में लिख रहा है जिसका कोई रीडर नहीं है, तो कर्नल जो है इस इवेंट को नोटिफाई कर रहा है प्रोसेस को सिक पाइप भेज के। ये आपने इलीगल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन किया तो आपके प्रोसेस को नोटिफाई कर रहा है, आपने सेगमेंट वायलेशन किया तो आपके प्रोसेस को नोटिफाई कर रहा है, टर्मिनेट कर रहा है। और नोटिफाई, टर्मिनेट तो उसका बाय डिफॉल्ट एक्शन है इसलिए टर्मिनेट कर रहा है, अदरवाइज वो नोटिफाई कर रहा है। ठीक है, इनमें वो टर्मिनेट नहीं करता है, इन दो में। सिक चाइल्ड कब जाता है, जो अभी मैंने बताया था ऊपर, जब भी प्रोसेस एग्जिट कॉल करता है, ये ऊपर बताया था ना, जब कोई भी प्रोसेस एग्जिट कॉल करता है, ठीक है, तो कर्नल क्या करता है, उसके पेरेंट को सिक चाइल्ड सिग्नल भेजता है। कर्नल इसके पेरेंट को, ये चाइल्ड एग्जिट कॉल कर रहा है, इसके पेरेंट को सिक चाइल्ड सिग्नल भेजता है। क्या बोलता है सिक चाइल्ड सिग्नल से, सिक चाइल्ड सिग्नल इसको मिलता है और सपोज इसने वेट कॉल नहीं किया है, तो इसका मतलब है इसने इग्नोर कर दिया। बाय डिफॉल्ट एक्शन इस सिग्नल का है टू इग्नोर दिस सिग्नल, तो पेरेंट ने इग्नोर कर दिया, मतलब कर्नल ने बोला तुम्हारा चाइल्ड टर्मिनेट हो रहा है, उसका टर्मिनेशन स्टेटस ले लो। सिक चाइल्ड भेज के वो इसको क्या बोल रहा है कि योर चाइल्ड इज टर्मिनेटिंग, टेक इट्स टर्मिनेशन स्टेटस। लेकिन अगर ये वेट कॉल करता है तो उसका टर्मिनेशन स्टेटस ले लेता है, सिक चाइल्ड के कोरस्पॉन्डिंग वेट कॉल करके टर्मिनेशन स्टेटस ले लेता है। लेकिन अगर वेट कॉल नहीं करता है तो चाइल्ड का टर्मिनेशन स्टेटस नहीं लेता है वो, तो चाइल्ड क्या होगा बेटा, चलता रहेगा। चलता नहीं रहेगा, चाइल्ड तो टर्मिनेट हो जाएगा लेकिन वो प्रोसेस टेबल स्लॉट नहीं छोड़ेगा, उससे हम कहते हैं जॉम्बी प्रोसेस। जॉम्बी भी दिखाऊंगा मैं आपको, अभी दिखाता हूँ जॉम्बी, ठीक है। और ऑर्फन आप देख ही चुके हो, ऑर्फन अनाथ, अगर चाइल्ड पहले टर्मिनेट हो गया, सॉरी पेरेंट पहले टर्मिनेट हो गया तब चाइल्ड ऑर्फन बन गया था, वो तो आप देख चुके हो, ठीक है। जॉम्बी दिखाता हूँ अभी, मतलब अगर मैं ये प्रोग्राम लिखूंगा, अगर मैं ये प्रोग्राम लिखता हूँ मेन id इक्वल्स टू fork if id is equals to 0, do something here, do something here means आप चाइल्ड का PID PPID प्रिंट कर लीजिए और लास्ट में एग्जिट चाहे लिखो चाहे मत लिखो, दिस इज नॉट कंपल्सरी, ठीक है। एल्स, एल्स में मैं क्या कर रहा हूँ, पॉज, दिस इज अगेन वन मोर प्रोसेस सिस्टम कॉल, पॉज भी एक प्रोसेस सिस्टम कॉल है। पॉज का काम वही है जो कंट्रोल जेड करता है ना, वही एक सस्पेंड सा एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस until some signal
arrives. हाँ सर, पेजेस है ही नहीं, अब बिल्कुल नहीं है पेजेस। तो रिम खरीद के ले आओ बाहर से, अभी कार से लेके आता हूँ मैं, बाहर से लेके आता हूँ, लंच के बाद लाता हूँ। बंद कर दो इसको। It suspends the execution of the process. So parent suspends its execution and it is waiting for the signal. ठीक है, तो ये चाइल्ड एग्जिट हुआ, कर्नल ने इसको सिक चाइल्ड सिग्नल भेजा, कर्नल ने पेरेंट को सिक चाइल्ड सिग्नल भेजा, लेकिन बाय डिफॉल्ट एक्शन क्या है सिक चाइल्ड सिग्नल का? पेरेंट अगर वेट कॉल करके उसको कैच करता तब तो चाइल्ड टर्मिनेट हो जाता, लेकिन अगर सपोज इसने वेट कॉल नहीं किया तो ये चाइल्ड क्या होगा? इट विल नॉट लीव इट्स प्रोसेस टेबल स्लॉट नहीं छोड़ेगा, इट बिकम ज़ॉम्बी। ठीक है, और पेरेंट तो पॉज है, तो आपको डॉलर प्रॉम्प्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि शेल किसके लिए वेट कर रहा है? शेल भी तो वेट कॉल करता है ना एल्स पार्ट में। इफ पार्ट में चाइल्ड के लिए तो वो चाइल्ड को एग्जीक्यूट करता है इफ पार्ट में, और एल्स पार्ट में इसके लिए वेट कॉल किया हुआ है, तो वो किसके लिए वेट कर रहा है? वो पेरेंट के लिए वेट कर रहा है जो पॉज है, तो डॉलर प्रॉम्प्ट भी नहीं आएगा। अब कंट्रोल जेड करके आप डॉलर प्रॉम्प्ट लाओगे तो आपको क्या क्या मिलेगा? ये चाइल्ड भी मिलेगा, एक्चुअली ये टर्मिनेट हो चुका है, लेकिन एज अ ज़ॉम्बी ये चाइल्ड भी आपको मिलेगा और ये पेरेंट भी आपको मिलेगा, दैट इज वेटिंग फॉर द सिग्नल, वेटिंग फॉर अ सिग्नल। ये दिखाऊं आपको करके छोटा सा? So could you explain this code one more time? On the terminal, should I explain on the terminal this one? सर एक बार करके दिखा दो। करके दिखाने से अमोघ काम हो जाएगा। पिको ज़ॉम्बी डॉट सी मेन id equals to fork if id is equals to 0, that is the child code. Suppose I am writing printf id of child is %d, ppid भी लिख दूं, and ppid is % get PID get and then exit, चाहे लिखो चाहे मत लिखो, exit will get called, ओके आपकी मर्जी है, else pause। सर हाँ सर ये आईडी वेरिएबल आपने डिक्लेयर नहीं किया। एक्सीलेंट, कंट्रोल एक्स, पेरेंट में मैं कुछ प्रिंट नहीं करा रहा, ठीक है, आप चाहो तो करा सकते हो, लेकिन पॉज के पहले, पॉज के बाद तो कुछ प्रिंट होगा ही नहीं ना। सर हेडर फाइल आपने नहीं डाली थी शायद उस पर। कोई जरूरत नहीं है ना, वार्निंग आ जाएंगे। ठीक है सर, ठीक है। तो देखो ये PID ऑफ चाइल्ड इज दिस एंड PPID इज दिस, ओके। मैंने पेरेंट में प्रिंट नहीं कराया, नहीं तो चलो वेरीफाई वैसे ही हो जाएगा। अब मैं क्या प्रेस करूं? कंट्रोल C तो नहीं कर सकता, नहीं तो टर्मिनेट, मैं कंट्रोल Z प्रेस करूंगा। एक्चुअली ये डॉलर प्रॉम्प्ट क्यों नहीं आया?
डॉलर प्रॉम्प्ट क्यों नहीं आया ये PID PPID होने के बाद? running in the background. क्योंकि चाइल्ड तो टर्मिनेट हो गया लेकिन पेरेंट पॉज है और पेरेंट के लिए शेल वेट कर रहा है, इसलिए डॉलर प्रॉम्प्ट नहीं आएगा। अब डॉलर प्रॉम्प्ट लाना है मुझे तो कोई सिग्नल भेजना पड़ेगा, तो कंट्रोल जेड मैंने भेजा। कंट्रोल जेड का डिफॉल्ट एक्शन क्या है कि वो उसे सस्पेंड कर देता है। तो अब PS करूंगा तो मुझे ये मिला A डॉट आउट, या PS-L कर लेते हैं जिससे A डॉट आउट जिसका PID है 4206, ठीक है। 4206 इसका PPID है, 4207 चाइल्ड है जो जॉम्बी बना हुआ है। दिस इज जॉम्बी, ठीक है, दिस इज जॉम्बी। एंड क्योंकि ये टर्मिनेट तो हो गया है लेकिन इसका टर्मिनेशन स्टेटस इसने नहीं लिया है, ठीक है। तो और ये क्या कर रहा है, इट इज वेटिंग फॉर ए सिग्नल क्योंकि हमने पॉज किया हुआ है, और बैश इज वेटिंग फॉर इट्स चाइल्ड। उसका चाइल्ड कौन है, A डॉट आउट। बैश का चाइल्ड है A डॉट आउट, 4206 का पेरेंट 2558, 4207 का पेरेंट 4206। तो ये जॉम्बी है, मतलब इसका पेरेंट चेंज नहीं होता है। और ऑर्फन, चलो वो रुक जाओ, अभी पहले FG कर दें। अब इसको अगेन फॉरग्राउंड में लाए, इट इज वेटिंग फॉर द सिग्नल। अगर मैं कंट्रोल C प्रेस करता हूँ अब, तब क्या होगा, पेरेंट टर्मिनेट हो जाएगा, और पेरेंट टर्मिनेट होगा तो जॉम्बी भी चला जाएगा। पेरेंट टर्मिनेट जब होता है तो अगेन कर्नल चाइल्ड सिग्नल भेजता है। अब पेरेंट टर्मिनेट हुआ तो अगेन कर्नल चाइल्ड सिग्नल भेजता है, और उसका जितने जॉम्बी हैं उसके कोरस्पॉन्डिंग वो सबका टर्मिनेशन स्टेटस इनिट ले लेता है, ठीक है। इनिट को आप देखना चाहते हो ना, PS-E, PS कमांड क्या शो करता है, इस टर्मिनल के कोरस्पॉन्डिंग ऑन प्रोसेसेस, और PS-E सारे PS-E आपके सारे सिस्टम प्रोसेसेस शो करेगा, ठीक है। सो देखिए इधर, द 1 PID इज फॉर इनिट, PID 1 इज फॉर इनिट। तो इनिट अडॉप्ट्स द ऑर्फन, लेकिन आपको ऑर्फन का PPID कुछ और दिखा रहा था, वो अभी आ जाएगा आगे इसी में, उसके लिए हम ग्रैब कर लेंगे इनिट को। तो ये सारे प्रोसेसेस हैं। आप अगर प्रोसेस ट्री देखना चाहते हो तो आप क्या करोगे, PS-EL पाइप तो आप PS का पेरेंट देखिए पहले, PS का पेरेंट कौन है, PS का पेरेंट है 2558। अब 2558 का पेरेंट कौन है, शेल का पेरेंट कौन है, बैश का पेरेंट है 2548, ठीक है। 2548 आपका ये रहा, इसका पेरेंट है जीनोम टर्मिनल। जीनोम टर्मिनल जो है ये बैश का पेरेंट है। और 1798 का पेरेंट कौन है, ये इस सिस्टम के 1798 का पेरेंट है इनिट, ठीक है, 1715। तो जो ऑर्फन का PPID दिखा रहा था वो 1715 दिखा रहा था, मतलब ये ओरेकल टूल बॉक्स में हम चला रहे हैं तो 1715 दिखा रहा है। अगर आप डुअल बूट पे चलाओगे तो हो सकता है 1 दिखाए, या सिस्टम D करके एक प्रोसेस होता है वो आए इनिट की जगह, ठीक है। किसी किसी सिस्टम पे आपको सिस्टम D करके प्रोसेस मिलेगा, ठीक है। तो समझ गए, 2 इनिट है इसमें। और 1715 का पेरेंट कौन है, 1195 लाइट DM। 1195 का पेरेंट जो इनिट लाइट DM, इसका पेरेंट है 1 इनिट, इसका पेरेंट इनिट है, मतलब इनिट का चाइल्ड है लाइट DM, लाइट DM का चाइल्ड है इनिट। इनिट ने क्रिएट किया जीनोम टर्मिनल, जीनोम टर्मिनल ने क्रिएट किया बैश, और बैश से आपने अपने प्रोसेस चला रहे हो। तो इनिट इज द एंसेस्टर ऑफ ऑल द यूजर स्पेस प्रोसेसेस। ये सब यूजर स्पेस प्रोसेस आपको दिखाई दे रहे हैं,
कर्नल स्पेस प्रोसेस नहीं दिखाई दे रहे PS-E से, जितने भी हैं दे आर यूजर स्पेस प्रोसेस। जैसे कि आप बुक में देखोगे आपके प्रोसेस चैप्टर में, तो अभी तो मैंने क्या पढ़ाया था आपको, सिर्फ प्रोसेस की डेफिनेशन और प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक यही बताया था ना, प्रोसेस स्टेट डायग्राम भी नहीं बताया था। प्रोसेस स्टेट डायग्राम आज बता दूंगा। और इसी चैप्टर में आप 3.3 में जाओगे, ऑपरेशन ऑन प्रोसेसेस, जिसमें पहला प्रोसेस क्रिएशन ही है, वो एक्चुअली मैं बता चुका हूँ। तो प्रोसेस क्रिएशन में ट्री एक शो किया हुआ है। तो ये ट्री जो है ये इनिट से स्टार्ट किया है इन्होंने। इनिट इज द यूजर स्पेस प्रोसेस, इट विल क्रिएट लॉगिन। अब इसमें दिखाया इनिट क्रिएट्स द लॉगिन प्रोसेस, लॉगिन क्रिएट्स द बैश प्रोसेस। तो ये हो गया आपका उसके लिए। जैसे सपोज मैं डम टर्मिनल से कनेक्ट करता हूँ किसी मशीन को, तो इनिट गेटी प्रोसेस एक रहता है हर डम टर्मिनल के करस्पॉन्डिंग। गेटी क्रिएट करता है लॉगिन को, लॉगिन क्रिएट करता है बैश को, और बैश क्रिएट करता है पीएस को। मतलब ये सिस्टम टू सिस्टम वेरी करेगा। ये जो इनिट के बाद का ट्री है, init is the first user space process that is created at the time of booting in Linux. Okay, now init creates getty process corresponding to each dumb terminal. अगर सपोज मैं टेलनेट से किसी मशीन पे कनेक्ट कर रहा हूँ मल्टी यूजर इन्वायरमेंट में, ठीक है, getty creates login process, user gives its login and password and it will create bash, और बैश पे आप करते हैं, ठीक है, काम पीएस प्रोसेस या जो भी चलाते हैं, ठीक है। और इसमें हमारा ट्री क्या बन रहा है, हमारा ट्री ऐसा बन रहा है, इनिट क्रिएट्स जीनोम टर्मिनल, जीनोम टर्मिनल पे ही आपने लॉगिन नेम पासवर्ड दिया एंड इट इज क्रिएटिंग बैश, और बैश पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है। सो ये ट्री जो है इन्वायरमेंट जो भी आप यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग डिफर होगा, लेकिन आप ट्री को देख सकते हैं PS-EL के आउटपुट से अपना ट्री देख सकते हैं क्या ट्री आपका है। इस तरह से ये लिखा भी है बुक में कि आप अपने खुद वी कैन ऑब्टेन, लिखा है आपके बुक में कि ऑन यूनिक्स एंड लिनक्स सिस्टम वी कैन ऑब्टेन ए लिस्टिंग ऑफ प्रोसेस बाय यूजिंग PS-EL and it will list complete information for all the processes currently active in the system not corresponding to your terminal. अभी देखो टर्मिनल क्या है इनके corresponding, TTY means it is not correspond, these processes question mark show कर रहा है ना टर्मिनल में, so they are not corresponding to your terminal. ये सारे प्रोसेस दिखा रहा है, और ये कुछ TT4 TTY5 ये टर्मिनल के corresponding है। तो जो टर्मिनल के corresponding है वो जो है वो प्रोसेसेस अलग है, और जिनके corresponding क्वेश्चन मार्क दिखा रहा है दे ऑल आर डीमन प्रोसेसेस। डीमन प्रोसेस किसे कहते हैं, जिनके corresponding कोई कंट्रोल टर्मिनल नहीं होता है, ठीक है। कंट्रोल टर्मिनल ये जैसे इनके corresponding कंट्रोल टर्मिनल है ना, ये सारे गेटी के corresponding, ये इतने सारे गेटी प्रोसेस हैं, इनके corresponding टर्मिनल्स हैं, लेकिन ये आप देखिए क्वेश्चन मार्क, इनके corresponding कोई कंट्रोल टर्मिनल नहीं है, तो इनको कहते हैं डीमन प्रोसेस। डीमन प्रोसेस रनिंग इन बैकग्राउंड फॉर अ स्पेसिफिक टास्क एंड देयर इज नो कंट्रोल टर्मिनल एसोसिएटेड विद इट, ठीक है बेटा। डीमन तीन तरह का बताया मैंने, ऑर्फन, ऑर्फन किसे कहते हैं, इफ पेरेंट टर्मिनेट्स चाइल्ड बिकम्स ऑर्फन एंड अडॉप्टेड बाय इनिट। उसका PPID क्या दिखाएगा, इनिट का PID। जॉम्बी, if child terminates, kernel sends child signal to the parent to take its termination status, but parent
if it ignores it, if it doesn't call wait, then child becomes zombie. Okay, and termination status of the child will be taken by init when this parent terminates. Or daemon process running in background for a specific task. Okay, and no control terminal associated with it. कंट्रोल टर्मिनल उसके corresponding associated नहीं रहता. क्यों ऐसा रखा गया है डेमन का, जिससे कि वो टर्मिनेट ना हो किसी सिग्नल की वजह से. हर सिग्नल का अपना अपना पर्पस है ना. जितने सिग्नल है बेटा, इनका सबका अपना अपना पर्पस है. तो ये जो है, अगर कंट्रोल टर्मिनल, जैसे कि जब हम एग्जिट करते हैं तो हैंगअप सिग्नल जाता है, लेकिन किनको जाता है हैंगअप सिग्नल? जो भी इस टर्मिनल के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोसेसेस हैं. तो बाकी टर्मिनल के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोसेसेस टर्मिनेट नहीं होंगे. मतलब सपोज आप मल्टी यूजर एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो, तो आपको PS-E से सारे प्रोसेस दिखाएगा. मतलब जैसे 3 स्टूडेंट सपोज एक ही मशीन पे काम कर रहे हैं, तो PS-E करेंगे तो वो तीनों के प्रोसेस आपको दिखाएगा. जो भी वो काम कर रहे हैं ना, तीनों के प्रोसेस शो करेगा. तो अगर आप एग्जिट करते हो तो आपके कंट्रोल टर्मिनल के कॉरस्पॉन्डिंग ही प्रोसेस टर्मिनेट होंगे. ठीक है. तो जी, और हम क्या चाहते हैं कि ये जो डेमन प्रोसेस है स्पेसिफिक टास्क के लिए चल रहे हैं, ये टर्मिनेट ना हो सिग्नल्स की वजह से. तो इसलिए हम इनके साथ कोई कंट्रोल टर्मिनल एसोसिएटेड नहीं रहता है. तो कई सिग्नल्स मैंने आपको बताए, kill-l कमांड बताया, और Control-C, Control-/ Control-D बताया, Control-Z बताया, STTY-A भी बता दिया. ये अगर आप सपोज इस कमांड से क्या कर सकते हो बेटा, इस कमांड से आप एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर को Control-D की जगह Control-A बनाना चाहते हो तो वो कर सकते हो. ठीक है, नॉट मच यूजफुल. How do you determine erase, kill, end of file character on your system? The answer is STTY-A. ठीक है. अब क्या बताऊं मैं आपको, चलो कैट वेट वो सभी बताते हैं. TTY बता ही चुका, यूनेम बता देता हूं, और ये ग्रेटर देन लेस देन ये बता देते हैं. ये तो आप खुद भी कर सकते हो, MKDIR डायरेक्टरी बनाने के लिए, RMDIR ये भी आप खुद कर सकते हो. बाकी कमांड आप खुद कर सकते हो. ठीक है. ये आपको ग्रेटर देन लेस देन का वो थोड़ा बहुत बता देता है, और यूनेम भी दिखा देता हूँ. एनी क्वेश्चन दैट यू वांट टू आस्क? Uname simply shows this operating system name, and uname-a, it shows the kernel version OS Linux, the user is OS boxes, and this is the kernel that we are using. Okay, so uname is used to, uname-a से कर्नल वर्जन आ जाता है uname-r, uname-r ये सिर्फ कर्नल शो कर रहा है, कर्नल जो है आपका. और इसके अलावा ये उबंटू और कुछ इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा, कब इसका कर्नल वर्जन ये कब का है वो सब शो कर रहा है. और यूनेम
-n, ये तो यूजर नेम शो कर रहा है। एक ऑप्शन होता है यूनेम के साथ, वो मुझे याद नहीं आ रहा। ये शो अगर किसी कमांड की हेल्प देखना चाहते हो तो यू कैन राइट मैन, it will open the help of this command. So uname -a prints all the information in the following order, except omit kernel name, node name, kernel release. कर्नल रिलीज के लिए आप -r करोगे, कर्नल नेम के लिए -s, कर्नल वर्जन, मशीन, प्रोसेसर, हार्डवेयर प्लेटफॉर्म, ऑपरेटिंग सिस्टम, यही ऑप्शंस है इसके साथ, यूनेम के साथ। ठीक है, सो ये जो मैन करते हैं ये पेजर में खुलता है। पेजर से बाहर आने के लिए क्या कमांड, क्या प्रेस करना होता है हमें, क्यू। ठीक है, एनी क्वेश्चन? अब ये देखिए आप, अगर कैट जो होता है, कैट के साथ आप F1 करेंगे तो व्हाट इट विल डू, इट विल शो द कंटेंट्स ऑफ F1। F1 F2 करेंगे तो इट विल शो द कंटेंट्स ऑफ F1 F2, F1 F2 F3, तो ये करता है। ठीक है, और अगर कैट विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट्स, उसका कोड तो मैंने लिखा ही था, तो वो क्या करता है, टेक्स फ्रॉम इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड एंड राइट ऑन मॉनिटर। लेकिन आप इनपुट रिडायरेक्शन करना चाहते हैं, मतलब कीबोर्ड से इनपुट ना आए, F1 से इनपुट आए, तो व्हाट यू कैन यूज, लेस देन साइन इज फॉर इनपुट रिडायरेक्शन। ओके, so cat F1 और cat less than F1, cat F1 and cat less than F1, they will do the same task. Okay, but the means the code for the two is different. एक केस में शेल क्या करेगा, इस केस में शेल क्या करेगा, शेल प्रोसेस, it will create the cat process। और कैट का कोड में क्या लिखा हुआ है, कैट के कोड में तो लिखा है ना, 0 से पढ़ो और 1 पे राइट करो, एंड 0 इज कनेक्टेड टू कीबोर्ड एंड 1 इज कनेक्टेड टू मॉनिटर। ठीक है, तो अगर आप कैट लेस देन F1 करते हैं, कैट F1 में वो सिंपली कैट को पता, कैट ही F1 को ओपन करके डिस्प्ले कर देगा, उसमें वो कोड का कोई मीनिंग नहीं है जो मैंने लिखा था, रीड फ्रॉम 0 राइट ऑन 1, ये लिखा था ना, वाइल ये जो कोड लिखा था कैट F1 में, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि आप जब सी प्रोग्राम उसका लिखोगे तब आप F1 को ओपन करोगे उस केस में, कैट F1 में। ठीक है, F1 F2 है तो F1 F2 दोनों को ओपन करोगे, मतलब इन केसेस में कमांड को पता है, कमांड को पता है कि इट इज डिस्प्लेइंग द कंटेंट ऑफ F1 F2 दिस थिंग। ठीक है, इस केस में कैट लेस देन F1 में कमांड को नहीं पता कि वो F1 को ओपन कर रहा है, वही कोड चल रहा है कि इट इज रीडिंग फ्रॉम 0 ओनली। लेकिन शेल क्या करेगा, शेल F1 को ओपन करेगा और ये 0 को यहाँ से डिस्कनेक्ट करके, शेल 0 को, क्योंकि ग्रेटर लेस देन साइन किस कौन चलाएगा, लेस देन साइन के कोरस्पॉन्डिंग कोडिंग कौन करेगा, शेल करेगा। कैट F1 के कोरस्पॉन्डिंग कोडिंग कौन कर रहा है, ये कैट कमांड खुद कर रहा है, लेकिन कैट लेस देन F1 आपने लिखा तो ये इसका कोड शेल लिखेगा, शेल के कोड के अंदर रहेगा
कि ये आपका ये यहाँ से लिंक ब्रेक करेगा और F1 से इसको कनेक्ट कर देगा, ठीक है। और सपोज आपने लिखा कैट लेस देन F1 ग्रेटर देन F2, मतलब आउटपुट वैसे तो F1 के कंटेंट से मॉनिटर पे शो करता है, लेकिन आपने कर दिया ग्रेटर देन F2, तो अब ये कंटेंट्स कहाँ जाएंगे, ये शेल क्या करेगा, क्योंकि ग्रेटर देन F2 आपने लिखा है तो ये लिंक भी ब्रेक कर देगा और F2 एक फाइल क्रिएट करके राइटिंग के लिए ओपन करेगा और शेल जो है ये लिंक को यहाँ कनेक्ट कर देगा, इस लिंक को यहाँ पे कनेक्ट कर देगा F2 पे। तो कैट को नहीं पता, कैट का कोड तो वही है, रीड फ्रॉम 0 अप टू एंड ऑफ फाइल एंड राइट ऑन 1। ये कोड हमने चेंज नहीं किया, यही कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन शेल ने इस कोड को एग्जीक्यूट करने से पहले क्या किया, इट हैज ब्रोकन दिस चैनल, कनेक्टेड इट टू फाइल F1, it has broken this channel, connected it to file F2, okay, this channel to file F2, so and then this code of cat is executed। समझ गए? तो इनपुट रीडायरेक्शन या आउटपुट रीडायरेक्शन जो है शेल करता है। जैसे सपोज WC है, WC भी अगर आप WC रन करेंगे विदाउट इफ फाइल नेम आर्ग्यूमेंट के साथ रन करते हैं तो इट विल शो हेलो सर, क्लास चल रही है, करता हूँ OS का। जैसे WC F1 है तो इट विल डू द वर्ड काउंट ऑफ F1, अभी दिखाता हूँ मैं आपको करके, ठीक है। और WC अगर विदाउट एनी फाइल नेम आर्ग्यूमेंट यूज करेंगे तो उसका कोड कैसा लिखा हुआ है कि इट विल रीड फ्रॉम 0 अप टू एंड ऑफ फाइल, डज द वर्ड काउंट हियर, ठीक है, एंड देन राइट ऑन 1। तो अगर आप इसमें WC लेस देन F1 करते हैं तो F1 के कंटेंट्स का ही वर्ड काउंट करके मॉनिटर पे डिस्प्ले करेगा, लेकिन इस केस में WC नहीं जानता कि इसने F1 का वर्ड काउंट किया है, इस केस में ये जानता है कि इसने F1 का वर्ड काउंट किया है। समझ गए? ग्रेटर देन F2। मैं कैसे, हाँ बहुत सारा हो गया। हाँ ठीक है बेटा, बस ये दिखा दूं फिर मैं छोड़ रहा हूँ। जैसे मैं करता हूँ WC ज़ॉम्बी zombie.c, ठीक है। तो ये दिखा रहा है कि zombie.c में 10 लाइन्स है, 18 वर्ड्स हैं और 122 कैरेक्टर्स है, ठीक है। लेकिन अगर मैं लिखूंगा WC लेस देन zombie.c, तब देखिए इन दोनों आउटपुट्स में आपको कुछ अंतर नजर आ रहा है? कुछ अंतर नजर आ रहा है? इस केस में WC जानता है कि इट इज डूइंग द वर्ड काउंट ऑफ zombie.c। WC ने zombie.c को ओपन किया है, उसका वर्ड काउंट किया है, और इस केस में WC ने zombie.c को ओपन नहीं किया, WC इज रीडिंग फ्रॉम 0 ओनली। 0 कीबोर्ड से कनेक्शन हटा के, 0 का कीबोर्ड से कनेक्शन हटा के zombie.c पे कनेक्ट किसने किया है? शेल ने किया है। तो WC का कोड वैसा ही है कि रीड फ्रॉम 0, डू द वर्ड काउंट, राइट ऑन 1। समझ गए? मतलब WC का काम क्या है? WC का काम ये है कि मैं जो भी यहाँ लिखूंगा ना 0 से, अब कंट्रोल D प्रेस करूंगा तब वर्ड काउंट आ जाएगा। अब वो एक पहले अमोक पूछ रहा था ना कि कंट्रोल C और इसमें क्या अंतर है। अब कंट्रोल C प्रेस करूंगा तो क्या होगा? फोर्सफुल टर्मिनेशन कर रहा हूं तो कोई आउटपुट नहीं आएगा। कंट्रोल C तो फोर्सफुल टर्मिनेट कर दिया ना जब मैं 0 से इनपुट दे रहा था। अगर मैं नॉर्मल टर्मिनेशन करूंगा कंट्रोल D से तभी आउटपुट आएगा,
कि 3 लाइन्स है, 3 वर्ड्स हैं, 38 कैरेक्टर्स है। कंट्रोल सी से कोई आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि आपने फोर्सफुल टर्मिनेशन किया है, ठीक है। और ये आपको समझ में आ ही गया, इनपुट रीडायरेक्शन आउटपुट रीडायरेक्शन। पाइप भी इसी तरह, पाइप भी एक बार बता दूंगा, लेक्चर में बता दूंगा, ठीक है। तो अब इन सब का कोडिंग करोगे आप, लेस देन, ग्रेटर देन, शेल ये काम कैसे करता है इसका कोडिंग, और पाइप का कोडिंग कैसे करता है, और ये कैट वेट का कोडिंग, ठीक है। तो ये सब कोडिंग आप करोगे आगे, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, 1-2 हफ्ते में स्टार्ट हो जाएगा ये। कमांड का काम तो पूरा हो चुका है मुझे लग रहा है, इस फाइल का काम पूरा हो चुका है। mkdir, rmdir, mv रीनेम के लिए इतना तो खुद भी आप कर सकते हो, ठीक है। या इसमें इस फाइल में करते हुए कोई डाउट हो तो आप वैसे भी पूछ सकते हो। तो कमांड्स का काम बेटा पूरा हो चुका है, और इवन प्रोग्राम्स पे स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि आज मैंने कुछ प्रोग्राम्स आपको करके दिखाए हैं। तो इसी तरह मैं प्रोग्राम्स पढ़ाता रहूँगा, वो सब आप करते रहोगे, ठीक है, वही चलेगा। फिर प्रोग्राम्स पढ़ाते पढ़ाते आप ये सारे काम करने लगोगे, कैट का कोड लिखना, सीपी का कोड लिखना, लेस देन, ग्रेटर देन, पाइप, इन सब का कोड लिखना। इज इट ओके बेटा? जी सर। चलो, थैंक यू। ये एक बुक है मॉरिस बैक, डिजाइन ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बाय मॉरिस बैक। उसके एंड में, बुक के एंड में सारे सिस्टम कॉल्स के सिंटेक्स है, मतलब सारे सिस्टम कॉल्स जो है एक्सप्लेन्ड, छोटा छोटा एक्सप्लेन्ड है, जो मैं लिखता हूँ ना छोटा छोटा, कि पॉज से क्या होता है, इससे क्या होता है, वो सब उसमें है। बट योर क्लास इज वेरी इंटेलिजेंट, सो इसको अच्छे से करो बेटा। लीव, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। अच्छा, हम उस समय मिलेंगे अब, 2 बजे से ले लूँ ना, 3 बजे तक? 2 बजे से ले लूँ बेटा? सो सर 2:30 बजे मैथ्स की मैथ्स क्लास है। मैथ क्लास है क्या 2:30 बजे? यस सर। तो फिर 2:30 से कितने बजे तक है मैथ की क्लास? सर ऑफलाइन ही ले लीजिएगा सर क्लास। सर 2:30 से 3:15 है सर। हाँ, तो 3:15 बजे ले लूंगा। ऑफलाइन तो बेटा मंडे से स्टार्ट होगा। उसी में एडजस्ट कर लीजिएगा सर। अभी सर हॉस्टल में नहीं हो पा रहा है सर, नेट भी बहुत गंदा आ रहा है यहाँ पे। मतलब आज नहीं लूं? हाँ सर, आज ना नहीं, रहने आज दीजिए रहने सर, दे अगर सर। हो सकता है। ठीक सर है, हो सके तो रहने दीजिए सर। ठीक है, आज रहने देते हैं। फिर ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चलेंगी, मतलब मैं क्लास में से लूंगा, और क्लास वाले तो मेरी आवाज़ सुन लेंगे, प्रोजेक्टर से देखेंगे, बाकी बच्चे टीम पे देखेंगे। हाँ सर। हाँ सर। चलो, थैंक यू बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर।